ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ, ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਪਾਇਆ। ਜਹ ਜਾਈਐ ਤਹਾਂ ਸੁਹੇਲੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਸਦਾ ਸੁਭਾਈ, ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਸਗਲੇ ਫਲ ਪਾਵਹੁ। ਜੀ ਕੈ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਾਉ, ਨਾਰਾਇਣ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰਾ। ਹਮ ਸੰਤ ਜਨਾ ਰੇ ਨਾਰਾ, ਪਤਿਤ ਪਨੀਤ ਕਰ ਲੀਨੇ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਜਸ ਦੀਨੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਸਦ ਜੀ ਸੰਗ ਰਖਵਾਲਾ, ਹਰ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ। ਬੋਹੜ ਨ ਜੋਨੀ ਪਾਈਐ, ਜਿਸ ਦੇਵੈ ਪੁਰਖ ਬਧਾਤਾ। ਹਰ ਰਸ ਤਿਨ ਹੀ ਜਾਤਾ, ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਸਰਣੀ ਪਾਇਆ, ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਸਰਣੀ ਪਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦਰੋਂ ਬਰੋਸਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਕੁਰੀ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ, ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ, ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਖਵਾਲ, ਬਾਬਾ ਉਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਨ ਵਾਲੇ, ਤਥਾ ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਬਰਸਾਏ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਜੋ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਆਖਿਆ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਹੋਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ, ਪਰੰਪਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿਗੜਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਉਂ ਮਹੱਲ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੋਲਾ ਦੋ ਫੌਜਾਂ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਪਰਸਪਰ ਸ਼ਸਤਰ ਅਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਫੌਜ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ, ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਸਤਰ ਅਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਹਾਥੀ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਊਠਾਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ, ਗੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ, ਰਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ, ਪੈਦਲ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਟ ਕੇ ਹਮਲਾ, ਉਵੇਂ ਦੌੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਭਿਆਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਟੇਬਾਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਲਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵਾਲੀ। ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ, ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋਲਗੜ੍ਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੁਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਕੇਸਗੜ੍ਹ, ਗੜ੍ਹ ਨਾਮ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ,
ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਕੇਸਾਂ ਧਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਇਆ। ਔਰ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਮੇਨ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ। ਔਰ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਅਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ, ਹੋਲਗੜ੍ਹ, ਅਗੰਮਗੜ੍ਹ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨਰਮੋਗੜ੍ਹ ਵਗੈਰਾ ਰਚੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਹ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਤਿਉਹਾਰ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਦਾ, ਰੁੱਤ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਲੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਭੂਆ ਹੋਲਕਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜ ਕੇ ਮਰੀ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਗੁੜ ਦਾ ਹਵਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ ਰੰਗ ਲਗਾ ਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਆਜ ਹਮਾਰੇ ਬਨੇ ਭਾਗ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਜ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਗਾਰਚੀ, ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਵਗੈਰਾ। ਫਿਰ ਹੋਲਗੜ੍ਹ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਗੰਮਗੜ੍ਹ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚਰਨ ਗੰਗਾ 'ਚ ਸ਼ਸਤਰ ਅਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਗੋ ਜਲਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਆ ਪਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਇਕਰਾਨ ਗਊਆਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੁਕਰ ਗਏ, ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੀਸਗੰਜ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਝਾੜੂ ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਝਾੜੂ ਦਿਆ ਕਰੇਗਾ ਮੋਹਰ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇੱਛਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੂੰ ਨਿੱਧ ਆਵੇ ਤਾਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਉਸਤਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਲੋਹ ਲੰਗਰ ਤਪਣਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਨਗਰ ਨਾਲ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਨਾਨਕੀ ਚੱਕ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਕੌਤਕ ਕਰਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਸੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 2 ਚਮਕੌਰ 2 ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅਤੇ 3 ਪਿਆਰੇ
प्यारी मूर्ति चमकौर साहब ते दो प्यारे नाल होए सी, भाई दयाल सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी। नाले ही सचखंड के उन्होंने डेरे बने हुए हैं तो माता भागपुर का भी शस्त्र वस्त्र उत्थे है। सो इस वास्ते कि भाई दयाल सिंह साहब नूं कहण लगे आ जिहड़ी ठंडी हवा का बुला है ये यूं प्रतीत हो रहा जिमें मेरे पिता गुरु की नगरी श्री आनंदपुर साहब तो आया हुए। आप इस नगर के नाल इन्ना उन्होंने लगास से कि महाराज शरीर करके फिर दोबारा इत्थे नहीं आ सके। तो गुरु ग्रंथ साहब के अंदर खालसे के अंदर उन्होंने ये जोत महाराज के अंदर जामा खालसे के अंदर वरत रहा। ये महाराज ने कृपा की है तो कितने औरंगजेब दियाँ फौजां के घेरे पैंदे सी, उदों भी सिंह तत्पर हो के धर्म युद्ध लड़ते रहे, शहीदियाँ पाते रहे। और अज भी देखो उन्हों का नाम निशान नहीं घेरे पाने वालों का कितने लाइदे नहीं, बंसा नष्ट हो गई, कुलां खत्म हो गई। तो खालसे की कुल दिनों दिन चढ़ती कला बध रही है। और किमें ये सिखां का सबनों बड़ा त्यौहार है। जिन्ना इकट्ठ श्री आनंदपुर साहब होंदा वो किसी भी तीरथ से इन्ना इकट्ठ नहीं होंदा, सबनों ज़्यादा इकट्ठ इत्थे होंदा। यह खालसे की जन्म भूमि है, क्योंकि सिख तो आरंभ करके सिंह तक का एक सफर है। सिंह नूं फिर खालसा बना के अकाल पुरख का स्वरूप बनाया सी। 239 साल 10 गुरु साहबान ने एडी बड़ी मेहनत की है। फिर खालसा बना के बचन किए सी, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूँ करूँ निवास, खालसा मेरो सज्जन सूरा, खालसा मेरो सतगुर पूरा। ये महाराज ने मेहर की, पर अजे अं खालसा बनना पसंद नहीं करते कि इस तरह नशियां पत्तियां फैशनों के मगर लग के सिखी तो पतित हो गए हैं। हुण आ होले महल्ले से देखिए खालसा स्वरूप च गिणती के मिलणगे तो खुली किरिया वाले बहुत है, पर महाराज मेहर करे फिर ये बख्शिश मिलती है। सिखी उसकी कृपा के नाल मिलती है, उमें नहीं मिलती है। ये माया के पदार्थों के जोर नाल नहीं। पहाड़ी राजियां नूं कहा सी ना अमृत छको, कहते अमृता छक लांगे एक तो सानू बोधी रखने की इजाजत मिले, जंजू की और देवी की पूजा की इजाजत मिल जाए। महाराज कहते नहीं, असीं जिहड़ा खालसा बनाउणा वो तो अकाल पुरख का ही पुजारी होगा। उन्होंने भागां ने साथ नहीं दिता, पर महाराज ने गरीब सिखां की कृपा करके इन्होंने ये बख्शिश देती है। इन कीटन ते कर हों मरगिंदू, कीड़ियां नूं शेर दे समान बलवान बना देंगे, बना दिता, प्रतख कर दिता। सो इस करके ये भाई साहब भाई दयाल सिंह जी, बाबा शोभा सिंह जी और बाबा साहब सिंह बेदी ने बाबा शोभा सिंह जी के दस्तावर हस्त कमलों द्वारा पंजां प्यारियां राही इत्थे आके 10वें पातशाह तो 48 साल बाद उन्होंने जन्म होया, अमृत छकिया। बाबा साहब बेदी उन्हीं महाराजा रणजीत सिंह नूं ये राज बख्शिया सी। बाबा भाग सिंह, बाबा वीर सिंह, बाबा खुदा सिंह, बाबा महाराज सिंह
तकरीबन सारे महापुरख बाबा साहब बेदी की शरण च आए हैं। फिर जुदियाँ जुदियाँ सेवा ला के इन्होंने नरंगाबाद, लाहौर और जिथे ये सिंगापुर दी काल कोठड़ियाँ उत्थे भुगतान भुगतिया समा। ये एडी बड़ी महान भाई साहब भाई दयाल सिंह दी है संप्रदा टकसाल है। तो बाबा बहाल सिंह जी आलपाल वाले ने आप आके नींह पत्थर रखे उसे पंजा प्यारिया। सो इस करके और जिन्नियां इट्टां भट्ठा इत्थे केसगढ़ में इतों इट तैयार हो के लगी संत बाबा हरी सिंह कहारपुर वाले महापुर देख लो। जो पहला आए इतों श्री साहब मिले सी वो हाले भी उसकी सांभी हुई है क्योंकि श्री साहब द्वारा सिक्खी की परख की सीस पेड़ किए खंडे नाम तैयार करके सरजीत किए अमर तैयार करके हम बुरके भर के हम छिट्टे मारे धड़ा ने सिर जोड़े। तो जे ना जोड़ते फिर लोगों ने अमृत थोड़ी मनना दसा भी शक्ति है। अमृत का नाम जीवन मेरे तू दे मोरे लाता एड़े ते टिप्पी अंग अमृत मेरे तू अखर दे मोरे लाता अंग अमृता बन अर्थ की बने जीवन जीवन दे देता हमारा कृपा करती खालसा। सो इस करके ये महापुरखों की याद बाबा शोभा सिंह जी वो तकरीबन इत्थे आनंदपुरे ही रहे हैं सारी जिंदगी बाहर नहीं गए दुखी लोगों की क्योंकि महाराज उन्होंने सेवा केसगढ़ साहब धूप बत्ती झाड़ू बहारू की प्रसाद लागल से बाबा गुरबख्श ने शीसगंज सुनना छड़ के नहीं गए इत्थे जरूर झाड़ू बहारू करते रहो। दुष्टां का जोर है समा आएगा खालसा फिर आपे सेवा संभाल लेगा वो महाराज जी मेहर हो गई है। सो इस करके बाबा जी का मन बड़ा सी भी देखो हूँ कुरी साहब तो उधर रावलपिंडी में रह गया स्थान गमरा नदी के किनारे बाबा भाग सिंह जी कुरी वाले ये उन्होंने उत्थे तो हम दिन किन मना उधर रह गई जाओ। ये उन्होंने पुरखियां का बजुर्गों का स्थान है। ये उन्होंने निमित्त भी आपां अरदास करिए भावें वो तो कमाइयां अपनियां कर गए गुरमुख जिहड़े हुंदे आ दुआयां वास्ते हुंदे आ फिर भी उन्हों की याद नूं रखना जरूरी हुंदा। इहदे अलावा उन्होंने रमेश्वर जगन्नाथपुरी सारे विचरे यात्रा की है बरकती विच ही रहे हो। तो जगन्नाथ गए सी तो पंडिया ने कोई सत्कार ना किया तो जिस वेले वो भोग लवाया सोने के थाल सोने के कोले पंडे ने अखां खोलियां तो थाल ही गायब हो गया। वो पे तो पई राजे वालों आउंदा सी सानू सज़ा मिलेगी पंडियो तुसीं लुको लिया। तो बाहर फिर वो महापुरखों को आए बेनती की कहते अभी तो समुद्र च सुट दिता कहते मारा ही मारे जाना कहते पछाण के चुक लो थे कई थाल थुल पै खोले जा। वो पंडे फिर बाबा भाग सिंह के चेले हो गए थे। फिर ऊना साहब आ गए तो बाबा साहब सिंह बेदी कहने लगे भाग सिंह तेरी श्री साहब कित्थे है कहते मारा पे हूँ तो फिर शहर तो टप गए हैं कहते नहीं जो दसम पातशाह का हुक्म है ना ये भी पूरा निभाना पंजा कगारां रह भी कृपा करना भावें तुहाडे अंदर सारी बख्शिश है ये बाहर और अंदर की सिक्खी का गूढ़ा संबंध है। ये महापुरखों ने फिर तेगा ये हमेशा
5 ਕਕਾਰਾਂ ਹੀ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾਇਆ, ਪੱਕਾ ਸੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ। ਕਹਿੰਦੇ 8 ਪੈਰ 8 ਦਿਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਰਦੇ, 2 ਤੰਬੂ ਲੱਗ ਗਏ, ਇੱਕ 'ਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਦੀ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ 'ਚ ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ। ਬਾਹਰ ਨੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ। ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਝਿਜਕੇ ਤੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਪੀਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਜਤ ਕਿਰਿਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਗੂਰਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜਾਣ ਹੀ ਜਾਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਸੇਵਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਗਿਆਨ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੇਲਾ ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂਹ ਟੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੈ ਭੇਦ ਸਰੂਪ ਸੀ। ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਹਰੀ ਜਿਹਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੰਨਿਆ। ਸਾਰ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣਾ ਲਿਆ ਪੁੱਛੇ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱਖ ਤਦਬ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਵੇ ਨੇ ਜਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਲਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱਖਿਆ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਹੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸੀ ਉਹ ਭੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਦੇਖ ਲਓ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਕੇ ਅਭੇਦ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅਦਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਹੋਏਗਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਛ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੇ ਡਬਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਫੁਹਾਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਫੇਜ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਦੀ ਲੀਲਾ। ਉਹ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ। 3-3 4-4 ਮਹੀਨੇ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਜੀਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੌਣ ਰੱਖਦਾ? ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾ ਲਿਆ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਨੱਪਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਜੰਤਰ ਫਿੱਟ ਕਰਤੇ, ਸਾਰੇ ਐਕਸਰੇ ਲੈ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਬਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਉੱਧਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਹਲ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਐਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਉੱਧਰ ਅਲਾਸਕਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਬਰਫ਼ ਹੀ ਬਰਫ਼ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਪੋਲ, ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਛ ਆ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਨਮੂਨੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੰਗ ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਲੀਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਭੇਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਦੀ ਗੱਲਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ, ਜਾਓ ਰਾਵਲਪੁਰੀ ਦੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ।
उत्थे बाबा बीर सिंह ने उनकी सेवा करके बख्शा लईआं और उत्थों ही ऊना साहब भेजा से उन्होंने। फिर इत्थों सेवा लैके जाओ लंगर चलाओ। माझे के लोग कहे काबू नहीं आए, बीर सिंह तू काबू करेगा, अखड़ माझे नूं तू नत्थ पाएगा। राजगुरु की पदवी मिली उन्होंने, सारे दुनिया रियासतों के अमृत छकाउंदे रहे। ये बाबा महाराज सिंह सेवा करते रहे। ये बख्शिशां होंदियां अपने अपने। सो इस करके जिन्ने बचाते सी ये काबू नहीं सी होंदे। ते बाबा भाग सिंह के हथ सोटी सी एवं घुमा देन ते जिवें धुणकी तो कां डरदा एवं डरदे हुंदे सी। सब उन्होंने मनते सी। इस करके मन च विचार सी कि बाबा साहब बेदी हुण उन्होंने लड़ी चल रही है, उन्हें मार्केट होंदा ज़्यादा खुला उत्थे बाबा बीर संधे भी मनाते हैं कि बाबा महाराज संधा भी बहुत साल नहीं मनाया किसी ने, भुल भुला गए स्टेजा तो नानस रह गया कितने। इत्थे तक निरंगावाद उन्हों का दिन किसी ने नहीं सुनाया। डरिओ सी कि जे उन्हों का नाम लिया कितने नक वढ़ते गुट वढ़ते कन कुतर दिते। निरंगावाद उन्हों का कोई नाम नहीं सी लेंदा। जिथे वो स्थान के सेवादार सी इन्ना भयभीत होए सी, कोई दिन नहीं मना के हाले तक भी इधर को किसी का नहीं हौसला पिया। हुणे कोई निहंग सिंह है, वो बेचारे लगे काम अपने उत्थे जाते रहे, वो बेचारे छोटा जिहा स्थान उत्थे लगे नहीं, डरदे इन्ने डर गए सरकार तो, अंग्रेजी सरकार तो। और फिर सिंगापुर उत्थे तो चलो शहीद होए मनाते रहे, आपां भी रब्बों चलो कृपा हो गई महाराज जी। इस तरह बाबा भाग सिंह का इन्हों का भी चित चेता घटे ही सी। फिर मैं कहा भी हुण उन्होंने बजुर्गों का इत्थे ही ठीक है, ये सांझी अरदास ही कि महाराज ने कृपा की है। तो उन्होंने साखियां भी बड़िया अलौकिक साखियां उन्होंने हैगियां। आओ हुण जो महाराज ने शब्द बख्शिया उसदी विचार सुन लीए। तो गतके वाले सिंह भी आ गए सुल्तानपुरों, इन्हों भी है भाई तुम जल पानी छक छका लो, फिर कथा तो बाद तुसीं भी अपना अखाड़ा ला लियो, क्योंकि इत्थे तो फिर अखाड़े वाला काम है ना आनंदपुर। वो पंडिया ने महाराज ने कहा महाराज ये सारे अवतार साड़ी पूजा करते रहे, फिर तुसीं सानू भुला ही दिता। महाराज कहते असीं तो नहीं भुलाया, तुसीं आपे ही परे नूं तुरे जाते हो। ताई तो तुहानूं पहलां कहा सी बड़ियां जातां वाले उमर छाव लो, तुसीं इधर तुरे ही नहीं। फिर हुण कर लैने फिर इत्थे तुसीं आया करो ते 8 घंटे रोज़ सिमरन करना, तुहानूं चंगा चोसा खाण पीण भी मिलेगा, पूरी दिहाड़ी मिलेगी, सोने दी मोहरां भी दिया करांगे। कहंदे ठीक है। कलियां कलियां झोंपड़ियां बनातियां, मूड़े ढाते, धूफ जोत कुंभ नारियल राते, इत्थे बह के ते आ माला ले लो, जाप करना टाइम ना, जल पानी लंगर पानी मिलेगा। तो हुण 8 घंटे कितने भी बाहर लंघिया तलवारां वाले खड़े, वो दिहाड़ी का रो पिट के पूरी की। तो महाराज ने मोहरां भी दित्तियां ते छाले भी, छकण छकाउण भी वधिया। कहते भी कल भी आ जाओ, कहते महाराज तो बहुत औखा सन, कहते असीं तो हुण तुहाडी पूजा करने वाला काम बनाई जाते, तुसीं भगौड़े हो चले एक दिन ने।
कहते सानू तो फिर यही ठीक है। राहु केतु बैल हमारे, 60 सती है खेती, पत्री हमारी बड़ी शिकारन, मार लिया वे छेती। फिर राहु केतु साढ़े बहुत है, पत्री के उंगल खा लो, शिकार ने इन्ना रख दो रखा के, तो जे इन्हू 60 सदी दस दो फिर अगले का घर लुट के लै जाते। कहते सानू तो फिर महाराज यही ठीक है। महाराज कहते भी असीं तो हुण तुहानूं सारिਆਂ ਦੇ पूज बनाने चाहते सी भजन करा के, तुसीं आपे भज गए। ये फिर ढाल बड़ी औखी है ना सिक्खी की। भगतां की चाल नाली, चाला नाली भगतां केरी, बिख मार्ग चलना, लभ लोभ हंकार ताई तृष्णा, बहुत ना ही बोलना, खन्यों तिखी बालों निकी, एत मार्ग जाना। गुर सिੱਖੀ बारी कह तिखी, खंडे धार ये बालों निकी। हुण जिहड़ा सीस भेंट करेगा वही दात लैगा, पोले पैरी तो है नहीं। ये आम नहीं कि फलाने तैं मंत्र लै आंदा, पोली पोली सिक्खी नहीं, ये तो फिर इस तरह ही है। सो इस करके उन्होंने फिर महाराज ने गरीब सिखां ते कृपा करती, अंमृत छक के गुरु वाले बने, महाराज ने मेहरां करती। सो महाराज ने ये सारी बाणी हुक्म रूप ही है। हुण समुची की व्याख्या तो भी टकसालां च हुंदी है, विद्यार्थी पढ़ते हैं। बाबा अमीर सिंह तो साल में कथा पूरी करते ही 60 कथा पढ़ाइयां। भाई मनी सिंह की टकसाल, इधर भी इवें भी चलता रहा, वध समा भी लगता रहा। एक शब्द की विचार जो आपने सुनिया मुख वाग के रूप वो सरवण करनी। रात भी विचारधारा सुनी सी, हुण फिर महाराज ने समा बख्शिया। बाकी दुनिया तो फिर मेला देखण आउंदी है, वो महाराज के दर्शन वाले तो घटे होंदे आ। कथा कीर्तन के रस वाले भी वेले वेले होंदे आ, बहुतियां दा घूमण फिरन ते हुंदा। को खा पी लिया, घूम लिया, चिगड़ियाँ मार लिया, हाँ जी, किस तरह हल हल करते फिरते हैं, किस के मूँह में नाम नहीं, बाणी नहीं। यात्रा से तो हुंदा आके नाम बाणी सेवा करनी या सिमरन करना, भै भावनी विच शरधा भगती दे नाल स्थानां दी यात्रा वगैरह करनी, संगत पंग च बह के कथा कीर्तन लंगर पानी छकना छकाना, एक मर्यादा होंदी है। हुण वो ताना पेटा सारा टुटिया होया, क्यों सिखां दा ना तो कोई धार्मिक तौर पर, ना राजसी, ना समाजिक तौर पर ऐसा नेता नहीं जिहदा कहना मन के सारे तुर। आपको तो हाजरी पई हुई है। आज जिथे कोई चंगा साधु संत है, जिन्नी कि संगत उन्होंने को आती है, उन्होंने तो थोड़ा बहुत मर्यादा का है। बाकी जिहड़ा खुला संसार है वो तो इस तरह ही है। उत्थे कोई नियम असूल या कोई नाम बाणी या सेवा सिमरन या शरधा भगती वाली गल बड़ी घट हैगी है। पर तीर्थां ते आके यही शिक्षा लैनी होंदी है। तो साड़ियाँ स्टेजा भी ज़्यादा राजसी बन जानिया, एक दूजे के भंडी प्रचार वालियाँ, उत्थे भी फिर कोई शिक्षा समत बहुत घट मिलती है कि चलो आए है कि इन्हों की झोली खैर पाया जाए, कोई इन्हों बहना उठना सिखाया जाए। क्योंकि बहना तो रहना कहना सहना ये सारिया गल्लां सीखनियां पैंदियां ना। बैठन का भी ढंग है, कहण का भी ढंग है, सुनने का भी है, गल नूं बर्दाश्त करन का भी है। ये संगत विचों चीज़ां मिलदियां हुंदियां। कोई सियाणे पुरख जिहड़े आ वो आप इन्हां गल्लां ते चलदे आ, दूए नूं चलण का वो उपदेश दिंदे आ। बाकी जिहड़े इत्थे दे पिछिंदे हुंदे आ
उन्होंने फिर रिश्तेदार आ जाते हैं मेला देखो। वो फिर गुरु की सेवा तो घट करते, रिश्तेदारों की सेवा तो लग जाते हैं। संगत की सेवा तो घट होंगे। लोक लाज में फिर भाई आए नहीं कथा वार्ता, बाबा जी रिश्तेदार आए उस तो संगत ना तो कोई रिश्ता नहीं, गुरु ना कोई रिश्ता नहीं। वो फिर इतने खड़े रहते हैं। साढ़े भाईचारा आया सी, लाना बना आ गया सी। वो ना तो आप उधर तुरे तो ना तुरन दिता, वो फिर है खाली रह जाते हैं। खंडा पाठा भी नहीं होंगे, जवाई भाई रिश्तेदार आ गए तो भाई जी कले पाठ करते रहते हैं, रागी कीर्तन, वो फिर उन्होंने सेवा च लगे रहते हैं। वो पाठों का फल भी यही मिलता। तो इस करके बिरले बिरले थाई कोई हैगा कि जिथे कोई नाम बाणी वाली इहो जी शरदा भगती वाली गलबात हो, वो सियाने का फिर सददे ही नहीं इन्होंने। ये नहीं आके आप कहे पाए लगना नहीं तो सानू लगन देना। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं लोग कटंब सब होते थोड़ा तो अपन बेड़ी आवे, फिर गल बनती है। तो इस करके ये संसार लोक लाज में फसिया हुआ है। तो महाराज कहते लोग तीना कछ न होवे, ना ही राम है आना। लोगन राम खिलौना जाना, रब नूं खिलौना बनाया। आ हुण कईयां ने फोटोआं खरीद लैणियां, मूर्तियां खरीद लईयां, वो खिडौना बना लिया परमात्मा नूं। ते नियाणियां दा काम हुंदा खिडौणियां नाल खेलण। ये संसार दा ऐसा है। सो इस करके जदों सिक्खी दी परख कीती, बड़ी दुनिया आई, फिर महाराज ने सद्या सानूं हुक्मनामे भेज के। 85,000 तो बैठा ही सी। तंबू लाया केसगढ़ ऐं आ गया नंगी श्री साहब लागे, चंडी खूंदी प्यासी है, 5 सिखां दे सिरां दा खून मंगदी है। 5 मसंद तां ज्यों भजे माता गुजरी को, कि मारा पुत नूं समझाओ, तुहाडा पुत तां ही किरपान लैके आओ, सिखां नूं वढणा चाहुंदा, सिखां नूं वढण दी बना ली स्कीम। तो जिले फिर झटका दिता। हुण बकरा झटकाउणा तां सौखा, अपने आप का झटका कराउणा बहुत औखा। तो महाराज ने सिखां नूं झटकाया। कहन लगे वो तो गल ही नहीं है, तो सही गल ही है। कहते महाराज चंडी तो नहीं पुठी पै गई। महाराज कहते मसुंदो ये चंडी हुण किसी टाइम तुहानूं ही पुठी पैनी, जिहड़े पुठे काम करते रहे। ये चंडी पुठी पई भी मसंदा नूं, जिहड़े कृतियां करते भी महाराज ने सजा दित्तियां सी। इत्थे भी वो खूह हैगा ना मसंदा का, तेल कढ़िया ते डेरा तो कड़ाहा पिया हले। शायद महाराज ने सांभिया भी लोड़ पे पै जाए, गज के बोलो वो कड़ाहा हले है फिर शायद महाराज ने फिर वरतना होगा, सांभिया उत्थे। सो इस वास्ते परख विच फिर भाई पारो साहब जदों गुरु अमरदास ने परख की, 3 जने पास हुए, बाबे नानक, भाई लैणा, गुरु अंगद साहब बन गए। गुरु अंगद साहब ने गुरु अमरदास, जिले महाराज ने की फिर 3 निकले। एक तो भाई पारो जी डले वाले, एक बीबी भानी, ते तीजे भाई जेठा श्री गुरु रामदास। पहला नंबर लाया भाई पारो का।
परमहंस एक दूसरे बनाया के ब्रह्म शोध मैंने परमहंस बन गए परम जो बड़ा सारे में साथ से साथ में लेने की बहुत बार उसमें जागना साथी ग्रहण और वो परम बड़ा का परमात्मा वो जाके हुआ वो जय लगी है फिर भी मिलन करता है वो नाम तो नहीं कंप्यूटर पर हो गया क्या आपको पता चलेगा बारह के नीचे ना बैठना वो बना है केवल को भी आप मुझे आगे की बात है दीदी ने जा सकता है वो तो वो नाम करते सीरियस करके बारह संदेश का भी करते हैं परिचय और जीवन भारत शादी का पानी नदी जो पति नदी जाना पति को पढ़ा सकते यानी तो लोग के होते हैं पति में ऊर्जा बन गया जगह को पूरी चीजें पति की पूरा ये भी पतिव्रता बने पति पतिव्रता बने प्रेरणा दोनों फैसले की कमी है कितने कितने फिर पत्नी लगी है बीजना चाहिए तो इस तरह पति के कारण आप सेवादार बन के दिखा देती है पत्नी का जिनका पिता भी गुरु पति भी गुरु पुत्र भी गुरु उनका भी गुरु पुत्र भी गुरु तो बात है नदी घेर गया क्योंकि महाराज जी गया से तुम्हें तुम्हारा बरका पानी हो गया सेवक के पीछे अंतर कर रहे भारत बताती शक्ति के जो लोग पानी में पड़ते रेलगाड़ी गाड़ी कितनी शक्ति में डालते तो दांतों पार करने के मुझे ध्यान देती है उन्होंने ज्ञान दिया भारत को पढ़ा नहीं करते लोगों ने सुन जाना आपने कितनी दिखा लोग पहले को अपने दिखाया जाना तो बदला उन्हें तुम्हें कहना पड़ा बात ही जान के और महाराज ने जो अपनी सरकार की प्रोग्राम को पूर्ण का जो भी लोग उनको आनंद होना अमृत वाले कन्या और गुरु ग्रंथ आत्मा ग्रंथ के सिंह पर नदी के दोनों और वहां मेरे कपड़ तो बाहर अन्ना पड़े कहते जो बच्चाओं पेट पर जाती है मेजा बढ़ रही है भारत को संसार की वो कर रहा है हमारे अपने पर रहते हैं सदा को कर रहा भारत के पढ़ने को भारत को देखते महादेव बड़ी की बड़ी की बात खाते हैं पते वरना रानी पानी परा मारने लगा पानी मारे परा मारना परा परा नहीं पानी तो पता था लागी को बेटी मारना नहीं पेट मारना नहीं थोड़ी मारना नहीं वाले मारनी वो तो क्या होना वो सरकार मत है भाई
ये बोल के पानी देंगे आधा अपन पानी बोलते हैं भाई पीछे बोलना आलसो पक्ष को है हमारा को बढ़ेगा गुरु वासियां गुरु का ध्यान भी बहुत है उनकी शक्ति के लिए हिम्मत राजन पूरे विकास उपासन रोकना में जारी करनी मेहनत सदियों निर्मलियों आराम करिए उन्हें मार बड़ी मार दो बिना ना मिला चेतना भारत की बांसुरी बोल बैठ के अपने पैर को बड़ा के परमात्मा में तोड़ रहे महाराज गुरु ग्रंथ साहब जो गुरु नानक साहब का सिद्धांत शब्द को पीरा गैर पीरा में अपने जग को जो विरुद्ध जानता था कभी नहीं तो मन पे सबको चाहे कभी करती कृपा करके क्या होता है कभी भक्ति तो है क्या उन कई केस में आपको पति है चीज मैं कभी तो सुन देगा उनका भी किसी के बदल आ गया भक्ति नहीं देगा पार्टी को महत्व बन जाए कोई जनप्रचार बन जाए कोई प्रधान बन जाए तो मंत्री देगा गुरु ग्रंथ संस्कार्य के बोला हमारे की बात है कई बड़े बनाते सारे लोग सारे जगह सारे बदले आज में कौन दिए दशा बनी गई बड़ा तरह बदली भारत पहाड़ी के कृपा सारे मिलते और जनता कबीला में पंथी गणियों के मुकाबला जिले बात को मुल्क पानी की माता उन्हें आपकी जीवन रंग कितनी निर्माण ये बात पैदा लोगों का लोगों के कई ना ये ऐसा पढ़िए आपकी भी मतलब उल्टी में कितना बार होता है एक बार कितना बार होता है तो साल में कितना बार कितना बार सोच करके ये तो बोले कि सुनी जाए सरकार से नागरिक को सुनते हैं तो जड़े नियम प्रमोट करते हैं आए प्रमोटिंग भी करता है पहले की भी आई तो ये बात नहीं तो मैं पहले तो ये क्या है तो काल इतना चला करते हैं किसी को वही आई तो भी वजह नहीं है एक देखने का काल एक ही आ गया इनकी बात को अच्छे बनाते हम ये तो वही उन्हीं को वही आता था पंडित अद्भुत हुई इसको सेवा करनी चाहिए कि वही जो सेवा करती तो बहुत अच्छा वही नहीं करती है तो कृपा करती सेवा स्वयं करती अपने त्योहार वरना सारे लोग बैठे हो इन्हीं के लोग तो
कैसे नजर आते कोई नजर उनका मेरे बहुत बहुत उनका बोले हैं वो के बजाना बड़ा बड़ा के पेल के बहुत साफ ना सके और वो होते या अपनी नाम करते हैं उनका के नाम उनके बड़ा कहने का पता उनका बात पता लगे वो दिन में काफी बड़ा मामला है याद नहीं होती ये बात नहीं है कि बात नहीं है कई इंसान वो तो वही लोगों का ज्ञानी लोगों में या वो तो बड़े ना वो बारी बात की दुनिया में सबका बड़ा बात बारी की दुनिया में आपने वाइन करी करी लोगों की बात है पूरा तो पूरे बात सारा में वो कहते हैं कि पूरे जो पूरे आगे बातों का ध्यान रखना अब लगता है कि राजस्थान में जो आगे है नंबर पर एक ऊपर बोले को ऊपर बोले में बड़ा अंतर करना तो बोलते हैं ऐसे आगे ऐसे बातें हैं कि ना पालन कोई उन्हें जो को पालन किया नहीं हो पालन इतना हो जाए वो पूरा नजर में रखो क्लास की और ये वो नाम सब देगा आगे बताना क्या है तो ये जीवन वाव अकाउंट अब ये क्या करती है मेरा विद्यालय
Itu mengenai kalau dalam kehidupan satu ini yang permainan salah bukan seperti kalau itu berbeda. Berbeda. Kalau ini सिखना दूसरा होता है पर मत निर्भर लेकर सिखना भी तो क्या ये भी तो मुझे हाल करती आप पता करते थे आप दुनिया पर जो इस मसला के रखते हैं दुनिया भरवाने के भी तो पता करिए कि भगवान से पास करना का दुनिया है दुनिया में बहुत तुम्हारी अपने को कैसे करते हैं किताब की भगवान का दुनिया में तो रहा नहीं तो काम का जैसा पैसा पूरी क्या अनुमति कला कन्या पार्टी को संसार करी जाए पर जब आपका देखा गया कि क्या गुरुनानक की व्यवहार की गुरु बात करने के बाद वास्ते के लोग उन्होंने सेना बराबर को घर में मेरे डॉक्टर चाहिए उन्होंने नहीं ऐसी जनता की किनारे शीश पेट भीतर अंदर चले आए जब बचत में आ गए गुरु पूरे करने आया करने आए ये तो जनता ने देखा होगी हर संत सहाय लिख पाया उन्होंने परमात्मा को जानते थे संगीत सहाय ज्ञान के प्राप्त कर और लोग मुस्लिम के लिए थे कुछ लोग अपनी बड़े कहते बड़े कहते के कलाम हिंदू बना बातें बनाना कानून ने भी सीखी है उन्होंने चाहते थे कि सर्वज्ञ करते हैं यानी मतलब आप लोग पढ़ना उन्हें जानने के लिए बाजारों के मुस्लिम वीडियो करने का होता है इसे हमारे नेटवर्क छोड़ने बातों मिलने तो बर्बाद होने की रास्ता के बाद होता है तो वो पहले जानेंगे ना पहले से भी कर और जो लिंक्डइन की रीति रही है कि उनके हाथ में नाम देते हैं वो कहता है सेंटी का मेरे जीवन को सभी और जीवन में सारी बात कर रहे हैं अगर मुद्दा में जानता भी है कि केवल ये पता न लगे कि वो क्या लिखे तो सारा काम से प्यार प्यार बात सीधे वो भी देखते पहले चाहिए सेंटी का ये आप लोग के बड़े हुआ ठाकुर है जान के दूसरे फिर महाराज संगीवन महाराज नियम रात के राजनीति हाथ मारने जिले चले गए हमारे दूसरे से ज्यादा उनसे नारे लेंगे बंदी बोलजानी आपको आदत बुलंदी वाला बोलना उसने लगा नाम उनके लिए के बाद वो जो तक थोड़ा थोड़ा पानी पीने में तो अभी प्यारे हमारे पेट आज भी पूरी करता अंदर पकड़ हम उस बात को अपनी करना में लगा आज तो लगा ये उनको सदा वास्ते परमात्मा के निर्माण के बारे में पालोगे मन के लिए करने पर पाओगे क्या मन के सारे का पालोगे वो जीवन के नारायण सदा दिव्य सारे नारायण पुराना का वो नारायण परमेश्वर पुराना का हम संजना ने नारायण को बहुत सुनिश्चित पार्टी में मुक्त करना
और कृपा जिसे कृपा करना मेरा हरि का नाम ने पालन करे कृपा पालन करने के बाद नहीं पालन संसार को विधान करने के लिए हमारे को जीना तरीके ये कहना कि जो प्रार्थना की है वो हमारे बहुत बड़ा ये वाली को फेर हो इनका है पूरे करना पूरी दारू बनाने में बड़ी बात वो ये नहीं कर रहा है जिन्हें गुआरे मुख पर ये को मिला ज़्यादा हो सकता है लेकिन अपना बड़ी नाम की हमारे की बात देखने के लिए वो जब आप हो गया सब बढ़िया हम शांति जलाने प्रेम करने बन गया बन जाएगा कृपा जिन्होंने कृपा करता हमारा हमेशा पालन करेगा बाबा सब ये संग करना सारी चीजें आप निर्णय देखने करना समझ और उन्हें देखो और उन्हें कहो व्यवस्था होगी पाई जाते उन्हें ये केवल और पापान करने वाला और परमात्मा कार्य मानी और करुणा करेगा और करना देना इन व्यक्ति ने रास्ते को के बजाय तो बजाने को साबित के बोले जाना है ये ज्यादा तो नाम में उन्हें जानकारी में तो काम बोले इनको कार्य में उन्हें कब उन्हें जरूरी करते हैं ये बताता है कि ये प्रेरणा को बताता ये वो बताता नहीं को बताता हर वर्ष नहीं जाता अभी ये नाम का रास स्वाद नहीं जाता अब ये एक बार आप मरने को दुनिया रोज़ एक बार रात प्राण करनी पड़ी है तो मैं क्या बेटी को स्वाद नहीं नाम का इतना पूरी जरूरत नहीं इन्होंने रास्ता किया है जानना पंक्ति में जाना जन्मादे पंक्ति भूमि ने मिले तो बड़ा से प्रेम से ये संसार में यानी वो कितने भारत सिद्धांत का साथी ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी आत्माएं मानते हैं जैसे भारत बिल्कुल बड़ा राज्य वाले में होगा राज्य के बाद दिया पवित्र पुरानी है वो बहुत जमाने में तो भूत निवेदन वो नानक संगीत मेरे संगीत बात करने आपसे वर्षे को बन गए उनके प्राचीन का बन गया वो मौजूद दिन बन गए सारे ये दुनिया बन गई और समझिए ये बहुत बड़ी मुश्किल वाली है और सामने मैं एक बात सुनते हुए मैंने बात की थी मैंने सब सुनकर मानी पड़ी पाठ पूजा लगन सेवा की अपनी बात पाना जाना नाम करने के लिए और को नाम कल्याण उनका सब दिन के उन्हें संगीत मिलता है
Gracias.